ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਇਓ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਬਾਇਓ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਪੇਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ ਫਸਟ ਵੀਕ ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ 12th ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਇਓ ਮੰਥਲੀ ਦਸੰਬਰ ਟੈਸਟ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਪਣਾ PSCB ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਇਹਦੇ 20 ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 20 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, the test used to distinguish alcohols from one another is known as। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ MCQ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿੰਜ਼ਬਰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 2-4 DNP ਟੈਸਟ, ਥਰਡ ਹੈ ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਔਰ ਫੋਰਥ ਹੈ ਲੁਕਾਸ ਟੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਹਿੰਜ਼ਬਰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਜ਼ਬਰਗ ਆ ਇਹ 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਔਰ 3 ਡਿਗਰੀ एमाइन्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਮਾਈਨਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 2-4 DNP ਟੈਸਟ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨਸ, ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅਲਕੋਹਲਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਟੈਸਟ। ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ और अल्कोहल्स। ठीक है जी, इन्हां नूं डिस्टिंग्विश करन लई यूज किया जाता है। जबकि जिहड़ा लुकास टेस्ट आ, ये वाला जिहड़ा टेस्ट आ लुकास टेस्ट, असीं डिस्टिंग्विश करने सी अल्कोहल्स एक दूसरे तो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नूं असीं अलग अलग डिफरेंशिएट करना। किहड़े टेस्ट दे नाल कर सकदे हां, वो हैगा बेटा लुकास टेस्ट। इहदे नाल असीं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स नूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अल्कोहल्स। ठीक है जी, इस नूं असीं डिफरेंशिएट करते, तो आंसर तुहाडा हैगा लुकास टेस्ट। नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन। इन्हां दे विचों फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मैल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, इन्हां दे विचों किहड़ा है जिहड़ा फैलिंग सोल्यूशन नूं रिड्यूस नहीं कर सकदा। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਫਿਨੋਲ ਐਂਡ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲ ਹੈ और किहड़ा बेंजोइक एसिड है। टॉलेंस रिएजेंट, देखो जो टॉलेंस रिएजेंट आ वो तो डिस्टिंग्विश करते हैं एल्डिहाइड ते कीटोन्स, ये करते हैं एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स, इन्हां नूं असीं डिस्टिंग्विश कर लैंदे हां। ठीक है जी, सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं जिहड़ा आपां। नैक्सट हैगा मॉलिश रिएजेंट, इहदे नाल असीं की करते हैं टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट जेकर किसी ऑर्गन दे विच ऑर्गैनिक कंपाउंड दे विच प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, इहनूं चैक करन लई इहनूं यूज किया जाता। तो असी डिस्टिंग्विश किनू करना, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड नूं। नैक्सट हैगा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है जिहड़ा है अल्कोहल ते फिनॉल्स नूं डिफरेंशिएट करता। न्यूट्रल जिहड़ा फेरिक क्लोराइड है यह फिनॉल ते अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स, इन्हां नूं डिफरेंशिएट कर दिंदा। ठीक है जी, जिहड़े अल्कोहल ने वह न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड दे नाल रिएक्ट नहीं करते, जबकि जिहड़े फिनॉल्स ने वो रिएक्ट कर जाते हैं। इस करके जिहड़ा फिनॉल ते बेंजोइक एसिड दे विच जिहड़ा फिनॉल आ रिएक्ट कर जाएगा, वायलट कलरेशन देगा, इसलिए इसका आंसर की होएगा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। और नैक्सट है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह तां आपां जिहड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तां सोप बनाउण दे लई आपां यूज कर देंगे। नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, किहदे विच कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा। आपां ये वाला करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे ਤੁਹਾਨੂੰ कैनिजेरो रिएक्शन का पता होना चाहिए, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वुड्स रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये वैसे भी कल्ले कल्ले भी आ जाते हैं, ये तो हम चलो मल्टीपल चॉइस के ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आया होया। कैनिजेरो रिएक्शन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है, कैनिजेरो रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिन्हां दे कोल अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं ਹੁੰਦਾ कैनिजेरो रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ। ਅਲਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ CHO, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। और ये रिएक्शन किहदा हुंदा है जिहदे कोल अल्फा हाइड्रोजन है नहींगा, ਇਹਦਾ मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए। ਆਪਾਂ की लवांगे फिर फॉर्मैल्डिहाइड लै सकते हो तुसी HCHO। ठीक है जी, फॉर्मैल्डिहाइड ने जिहड़े दो फॉर्मैल्डिहाइड एक दूजे दे नाल जदों रिएक्शन हुंदा इन्हां दा ऑक्सीडेशन भी हुंदी है, रिडक्शन भी हुंदी है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस HCHO, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस किहड़ा लैंदे आपां पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड, तां इह बनाउंदा अल्कोहल OH। और होर की बनाएगा एसिड पोटाशियम वाला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, नो ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ कैनिजेरो रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन की सी साडा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। चलो पहले दे विच ही हो गया। नैक्सट वुड्स रिएक्शन भी करके देख लो। वुड्स रिएक्शन दे विच की होएगा कि अल्काइल हैलाइड, ठीक है, आपां अल्काइल हैलाइड्स ने जिहड़े वुड्स रिएक्शन दे विच दो अल्काइल हैलाइड लै गए और सोडियम दी प्रेजेंस दे विच ड्राई ईथर, सोडियम दे नाल ड्राई ईथर दी प्रेजेंस दे विच रिएक्शन करदे ने तां ओह की बनांदे आ हाइड्रोकार्बन बनांदे आ। वुड्स रिएक्शन दी गल कर लैंदे हां आपां, जिवें कि फॉर एग्जांपल आपां लै लो CH3Cl। मैं तुहानूं समझाउण वास्ते कर रही हां बेटे ताकि तुहानूं समझ आ जावे, अदरवाइज तां आंसर तां आपां कढ लिया। हुण सोडियम और ड्राई ईथर होएगा, तो बनाएगा है CH3CH3।
प्लस जिहड़ा क्लोराइड लिया तो सोडियम क्लोराइड। इत्थे देखो कार्बन ते कार्बन दे विच बॉन्ड हो गया, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इहदे विच बन गया। समझ गए होवोगे हुण तुसीं। इस तरह ही तुसीं करोगे राइमर टाइमर रिएक्शन और इस तरह ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इन्हां नूं तुसीं कर लोगे। राइमर टाइमर मैं तुहानूं समझा दिंदी हां कि नैक्सट भी तुहानूं क्वेश्चन वैसे भी हैगा। इत्थे देखो राइमर टाइमर रिएक्शन इत्थे भी हैगा। राइमर टाइमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। इहदे विच फिनॉल आ जिहड़ा फिनॉल OH, फिनॉल रिएक्ट करेगा किहदे नाल? क्लोरोफॉर्म दे नाल प्लस CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तां इह बनाउंदा इहदे नाल इत्थे ऑर्थो पोजीशन दे लगेगा एल्डिहाइड ग्रुप। और इस तो बाद फिर नैक्सट स्टैप दे विच एसिडिक मीडियम दे विच जदों इसकी हाइड्रोलिसिस हुंदी आ दैन इट मेक्स OH इत्थे बेटा Na लिखना सी, सोडियम इहदे नाल अटैच होएगा, ठीक है। ये वाला सोडियम ONA, H इत्थों रिमूव हो जाना, ठीक है जी, CH हो गया। उस तो बाद फिर OH, ये सोडियम रिमूव होएगा इस तो, तां होएगा OH और इत्थे लगेगा एल्डिहाइड ग्रुप और बनना की आपां सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये हैगा तुहाडा राइमर टाइमर रिएक्शन। ONA इत्थे आएगा, ठीक है जी। इहदे विच भी देखो किते कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा, सॉरी बन रहा इहदे विच कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा। इत्थे देखो आ कार्बन है इत्थे, ठीक है, ते आ वाला कार्बन हो गया। कार्बन कार्बन बॉन्ड इत्थे भी बन रहा, असीं देखना सी जिथे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा। will not result in the formation of carbon carbon bond। सो राइमर टाइमर दे विच ही बन रहा। इस तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जेकर करते हैं, चलो ये भी कर लें आपां। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन करते हैं आप हम। बेंजीन रिंग प्लस एस्टाइल क्लोराइड के नाल रिएक्शन करवाना है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तय बनाएगा एसीटोफिनॉन। मैं इधरली साइड ते इत्थे लिख दिया इस तरह करके, COCH3 ये बन गया एसीटोफिनॉन प्लस होएगा HCl। इत्थे भी बेटा देखो कार्बन, इत्थे कार्बन आ, इत्थे भी कार्बन, कार्बन कार्बन का इत्थे भी बॉन्ड बन चुका है। इस करके कल्ला कैनिजारो रिएक्शन आ जिहदे विच कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता इन्हां रिएक्शनस दे विच। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एमाइंस एक्ट एज ल्यूस बेसिस। ल्यूस बेस के तौर पर काम करते क्योंकि एमाइंस की ने डेरिवेटिव्स अमोनीया दे, ठीक है ना। अमोनीया के उत्ते की हुंदा, अमोनीया का आपां फार्मूला लिखते हैं NH3। ये डेरिवेटिव्स मतलब एक अल्काइल ग्रुप लग गया तो हाइड्रोजन को रिमूव करके ये बन गया NH2 बन जूगा।
1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया तो 2 अल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री तो 3 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे। पर नाइट्रोजन के कोल की हुंदा, लोन पेयर हुंदा, ते नाइट्रोजन के कोल लोन पेयर हुंदा। जिहदे कोल लोन पेयर हैगा जानी कि इलैक्ट्रॉन्स दे सकदा दूसरे नूं, दैट एक्ट्स एज ल्यूइस बेस, इट मीनस इट इज ट्रू। नेक्स्ट है वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक क्यों होंदे ने अल्कोहल दे नालों? इसका आंसर बेटे तुसी एक तां दसना कि फिनॉल्स ने जिहड़े उन्हां दा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देनी हैगी, और फिनोक्साइड जिहड़ा आयन बन जाता है हाइड्रोजन नूं रिमूव करन तो बाद, वो फिनोक्साइड आयन है जिहड़ी उहदी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिहड़ी ज़्यादा स्टेबल हुंदी हैगी, इस करके इट इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। जबकि अल्कोहल दे जिहड़े कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुंदी। आंसर तुहानूं वैसे याद होगा, थोड़ा बहुत मैं समझा दिंदी हां। जबकि अल्कोहल का जिहड़ा एल्कोक्साइड आयन बनता है वो किसी तरह की कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो करता, इस करके ये घट एसिडिक होंदे ने एज कंपेयर टू फिनॉल्स। दैन राइट राइमर टाइमर रिएक्शन आपां कर लिया। दैन कॉलबेज रिएक्शन करना। कॉलबेज रिएक्शन इत्थे दस दिंदी हां तुहानूं। कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल रिएक्ट करेगा 398 कैलविन और 427 की होएगा एटमोसफेयर प्रेशर होएगा। क्या बनाएगा सोडियम ओ एन ए इत्थे ग्रुप लगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ए वाला ग्रुप इत्थे ऑर्थो पोजीशन ते लगेगा और सोडियम इहदे नाल अटैच होगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, ये बनेगा सोडियम सैलिसिलेट। नैक्सट फिर इसका हाइड्रोलिसिस करना आपां डाइल्यूट HCl दे नाल, तो सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड OH और इत्थे COOH। ठीक है जी, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। प्लस की बनेगा सोडियम क्लोराइड, इत्थों सोडियम रिमूव हो गया तो ये विचों क्लोरीन आ गया। इस तरह ही हो गया कॉलबेज रिएक्शन। नैक्सट है बेटा वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन जिहदे विच के रिडक्शन हुंदी हैगी, एल्डिहाइड है जिहड़ा अल्काइल ग्रुप, एल्डिहाइड दे नाल लग्या, इत्थे छोटा जिहा करके दस दिंदी हां, और हाइड्राजाइन दे नाल रिएक्शन करेगा ये NH2 बनाएगा है RCH नैक्सट फिर इसका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस दे नाल जब क्रिया करेगा 453 तो लैके 473 कैलविन तक टैंपरेचर होएगा, तो एक ही बनाएगा RCH3, यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन बनाएगा है। ठीक है जी। प्लस जड़ा N2 है जड़ा इत्थे ये वाला जड़ा N2 है नाइट्रोजन गैस है जी ये रिलीज हो जाएगी। ये हो गया वुल्फ किश्नर रिएक्शन। नेक्स्ट है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन दैट ऑफ अल्कोहल्स। हायर बॉइलिंग पॉइंट देखो, हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाए तो यदा मतलब वो बॉन्ड ज़्यादा नहीं, बस अंडरस्टूड ही रखना तुसी। हायर बॉइलिंग पॉइंट जिहदा कहता इट मीनस वो बॉन्ड्स ज़्यादा ने, इसे करके वो बॉन्ड्स नूं तोड़न दे लई सानूं एनर्जी ज़्यादा देनी पैंदी है, इसे करके उसका असीं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कहने आगे। हुण जिहड़े अल्कोहल्स ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ अल्कोहल्स। जिहड़े कार्बोक्सिलिक एसिड ने इन्हां विच डाइमर्स बनते हैं। डाइमर्स मतलब आपस दे विच ही दोनों दो मॉलीक्यूल ने जिहड़े कार्बोक्सिलिक एसिड दे एक दूजे दे नाल ही हाइड्रोजन बॉन्ड दे नाल बज जाते हैं, और अल्कोहल दे विच इस तरह के डाइमर्स नहीं बनते, इस करके जिहड़े इहदे विच बॉन्ड ज़्यादा हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड दे विच, तोड़न के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसे करके इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दैन हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है जिहड़ा ये 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करते हैं इहदे विच क्लोरोफॉर्म दे नाल, और इसनूं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह दिंदे हैं असीं। इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन ही रिएक्ट करते हैं, इस करके 1 डिग्री अमाइन नूं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तो अलग करन दे लई भी ये वाला टेस्ट है जिहड़ा यूज़ किया जाता। इहदे विच 1 डिग्री अमाइन ने जिहड़े क्लोरोफॉर्म दे नाल रिएक्ट करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
अल्कोहलिक पोटैशियम हाइड्रोक्साइड नाल तां अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाउंदे ने। इत्थे मैं छोटा जिहा तुहानूं लिख के दिखा दिंदी हां। RnH2 1 डिग्री अमाइन हो गया, प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया, प्लस पोटैशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, इस तरह ब्रैकेट दे विच पाउणा। तां इसनूं जदों वार्म करदे हां आपां तां अल्काइल आइसोसाइनाइड बनदे आ, RnC, प्लस 3 मॉलीक्यूल बन गए पोटैशियम क्लोराइड के और 3 ही मॉलीक्यूल बन गए वाटर के। नैक्सट है हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड जिवें कि नाम तो स्पष्ट है, ब्रोम का मतलब ब्रोमीन के नाल क्रिया करेगा और एमाइड क्रिया करेगा उहदे नाल। ठीक है जी, एमाइड की क्रिया असीं किहदे नाल कराउणी आ, ब्रोमीन के नाल और बेस की प्रेजेंस दे विच। इहदा रिएक्शन तुसीं लिखोगे कोई भी एमाइड ले लो, CH3CONH2, जिहड़ा ये वाला ग्रुप आ CONH2 यह एमाइड नूं शो करदा, प्लस ब्रोमीन दे नाल रिएक्शन करवाउणा आपां इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पोटैशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा मिथाइल एमाइन CH3NH2, जानी कि 1 डिग्री अमाइन बन गया ये। एक तुसी ये देख सकते हो ये एक क्वेश्चन ये होर नोट करने वाला बेटे, आ देखो एमाइड है ना, ये एमाइड च एक कार्बन तो इत्थे है और एक कार्बन ये, 2 कार्बन ने ये, और जो तुसी ये वाला हाइड्रोकार्बन बने ये एको ही कार्बन रहेगी ये, जानी कि जो हाइड्रोकार्बन बनता एक कार्बन ओरिजिनल जितों आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं वो नाल एक कार्बन घट वाला बनता। नेक्स्ट है वाई आर एलिफेटिक एमाइन्स स्ट्रोंगर बेसिस दैन एरोमेटिक एमाइन्स। एलिफेटिक एमाइन्स ने जिहड़े स्ट्रोंग बेस ने दैन एरोमेटिक अमाइन। ये देखो स्पष्ट है कि जिहड़े एलिफेटिक अमाइन्स ने उन्हां दे कोल लोन पेयर है जिहड़ा डायरैक्टली देण दे लई हैगा उन्हां दे कोल, जबकि जिहड़े एरोमेटिक अमाइन्स ने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण जिहड़ा नाइट्रोजन आ उहदे कोल लोन पेयर इन्ना अवेलेबल नहीं हुंदा, उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ जांदा, इसे करके वो एमाइन्स जिहड़े एलिफेटिक अमाइन्स ने वो ज़्यादा ईजीली लोन पेयर दे सकते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइन्स, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण जिहड़े इलैक्ट्रॉन का पेयर आ जिहड़ा वो रिंग दे विच जिहड़ी एरोमेटिक रिंग आ उहदे विच घुमदा रहिंदा। नैक्सट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिटिंग रिएक्शन पता तुहानूं, ठीक है। देखो वैसे पेपर आ तुहाडा आने चाहिए ने तुहानूं रिएक्शन हैलो अल्केन ते हैलो अरीन दे विच, तां फिर भी दसदी हां कि तुहानूं फिटिंग रिएक्शन दे विच देखो जिहड़ा तां वुड्स रिएक्शन हुंदा, वुड्स रिएक्शन दे विच तां दोनों एल्काइल हैलाइड्स हुंदे ने, ये रिएक्शन एक दूसरे कनैक्टेड नहीं। फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन, जिहड़े वुड्स रिएक्शन हुंदे आ उहदे विच तां तुसीं एल्काइल हैलाइड लैणे ने दोनों ही। इन सोडियम दे नाल रिएक्ट करनगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और की बनाउणगे हाइड्रोकार्बन बनाउणगे, नाल सोडियम क्लोराइड बनना, तिन्नां दे विच ही बनना। और फिटिंग रिएक्शन दे विच की होएगा, एक एराइल हैलाइड होएगा, एराइल हैलाइड यानी कि बेंजीन क्लोराइड ला लो इस तरह करके, चाहे बेंजीन क्लोराइड ला लिया जिमें, प्लस दूसरा बेंजीन क्लोराइड प्लस की होएगा सोडियम, ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। सेम प्रोडक्ट उस तरह बनना, डाइफिनाइल बन जाएगा ये। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन दे की होएगा, एक की होएगा एराइल हैलाइड और एक होएगा एल्काइल हैलाइड CH3Cl। सेम उस तरह सोडियम के नाल ड्राई ईथर की प्रेजेंस के हाइड्रोकार्बन बनना है। नैक्सट है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन दे विच बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना तुसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये तुसी लओगे N2
Cl नेगेटिव चार्ज ते पॉजिटिव चार्ज, और Cu Cl दे नाल रिएक्ट करेगा HCl दी प्रेजेंस दे विच तां एराइल हैलाइड बना देगा क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड बन गया प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। नैक्सट है फिंकरस्टेन। फिंकरस्टेन दे विच आयोडीन आपां उस नूं जोड़न दे लई, ठीक है, आयोडो क्लोराइड आ जिहड़े सॉरी एल्काइल आयोडाइड्स बनाउण दे लई असीं जिहड़ा एल्काइल हैलाइड पहले ही आ कोई भी, चाहे क्लोरीन वाला चाहे ब्रोमीन वाला, उसका असीं सोडियम आयोडाइड दे नाल रिएक्शन करवाउने आ एसीटोन दे प्रेजेंस दे विच। नैक्सट है हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन दे विच असीं सिल्वर दा साल्ट लेना CH3COO सिल्वर दा प्लस ब्रोमीन दे नाल रिएक्शन करवावांगे CCl4 दी प्रेजेंस दे विच। हीट करदे हो तुसीं इस नूं तां बन गया CH3Br, ठीक है जी, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरह बेटे ये वाला तुहाडा क्वेश्चन पेपर हो गया। नैक्सट जिहड़ा सैकेंड पेपर आ उसनूं करदे हां। नैक्सट जिहड़ा सैकेंड पेपर आ ओहदा क्वेश्चन पहला, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग, इसका आंसर है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एस्टल्डिहाइड। कैनिजेरो रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस, की प्रोड्यूस करदा हुणे आपां पिछले लैसन दे पिछले पेपर दे विच आपां करके हटे हां कि एक अल्कोहल बनांदा और एक बनांदा कार्बोक्सिलिक एसिड। नैक्सट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो, एल्डिहाइड ते कीटोन्स किहड़े अंडरगो हुंदे ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है एल्काइल डायजोनियम साल्ट आर मोर स्टेबल देन एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट। ये वाला बेटे ठीक नहीं है, ये फाल्स है, ये वाला फाल्स हैगा या, क्योंकि जिहड़ा एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट आ उहदे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुंदी हैगी जिहड़ी कि उहदे ते पॉजिटिव चार्ज है जिहड़ा वो डिस्पर्स्ड हो जांदा, जबकि एलिफेटिक है जिहड़ा उहदे विच किस तरह की कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हुंदी। नेक्स्ट है वाई डू अल्कोहल्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन हैलो अल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट तुहानूं मैं समझाता किवें हुंदा है। अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अल्कोहल्स कहंदा कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोकार्बन्स ने जिहड़े उन्हां दे नालों देखो सॉल्युबिलिटी उदों हुंदी है जदों वो पानी दे जिहड़े मॉलिक्यूल्स ने उन्हां दे नाल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लैंदे ने। जिहड़े अल्कोहल ने जिहड़े वाटर मॉलिक्यूल्स ने उन्हां दे आपस दे विच भी जिहड़े बॉन्ड बने उन्हां नूं तोड़ के ओह सारियां दे नाल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लैंदा। इस करके अल्कोहल आ जिहड़ा ज़्यादा सॉल्युबल आ पानी दे विच दैन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है राइट विक्टर मीयर्स टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। जिहड़ा विक्टर मीयर टेस्ट आ आपां अल्कोहल्स नूं डिफरेंशिएट करन दे लई इस नूं यूज करदे हांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਉਣਾ, ਰੈੱਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री ਨੂੰ करना ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਰੈੱਡ ਫਾਸਫੋਰਸ और आयोडीन की बनेगा अल्काइल आयोडाइड RCH2I। नैक्सट ये सिल्वर नाइट्राइट पाना AgNO2 पाना सिल्वर नाइट्राइट। फिर बनेगा नाइट्रो अल्केन RCH2। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है जोड़ा, ठीक है बेटे। फिर नाइट्रो अल्केन है जोड़ा नाइट्रस एसिड HONO ये रिएक्शन करवा के जो भी प्रोडक्ट बनेगा जोड़ा भी प्रोडक्ट बनता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर बेस पाया जाता सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जेकर
ब्लड रैड कलर के पिपेट बन जाते हैं, ब्लड रैड तो 1 डिग्री है, और जेकर ब्लू कलर के बन जाते हैं तो 2 डिग्री है, और जेकर रिएक्शन करता ही नहीं हो कलरलैस रहिंदा है दैन इट इज़ 3 डिग्री। यह है विक्टर मेयर टेस्ट। नैक्सट है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन फिनॉल्स। मोर एसिडिक का मतलब देखो हम तुसी इन्हां दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी देखनी आपां कि जिहड़ा नैगेटिव चार्ज आ कार्बोक्सिलिक एसिड दे विच जिहड़ा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो 2 ऑक्सीजन दे उत्ते घुमदा रहिंदा, जबकि फिनॉल दे विच सिर्फ इक्को ही ऑक्सीजन दे उत्ते हुंदा है। इस करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स ने जिहड़े दैट आर मोर एसिडिक दैन फिनॉल्स। नैक्सट है इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। वाई? इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल, पानी दे विच सॉल्युबल ने इथाइल अमाइन, जबकि फिनॉल नहीं है। वेयर एज एनिलीन, सॉरी एनिलीन उहदे विच डिजोल्व नहीं हुंदा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो आपां पहला भी क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्युबिलिटी का कि जिहड़ा सॉल्युबल है मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाउंदा है वाटर मॉलिक्यूल्स दे नाल, जबकि जिहड़ा एनिलीन आ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्नी नहीं बनाउंदा ते हिंड्रेंस के कारण बड़ा उहदे कोल जिहड़ा हाइड्रोकार्बन नाल उहदे अटैच आ वो ज़्यादा वड्डा आ ते वो हाइड्रोकार्बन दा लार्ज पार्ट होने के कारण ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो घट करदा, इस करके वो सॉल्युबल नहीं है। Why is it difficult to prepare pure amines by ammonolysis of alkyl halides? क्योंकि ये बेटे मिक्सचर बन जाता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, इस करके उसनों अलग अलग करना औखा हो जाता, सैपरेशन करनी औखी हो जाती है कि इस करके प्योर अमाइंस की अमोनोलाइसिस के नाल असी नहीं बना सकते। प्योर अमाइंस ने जोड़े उन्होंने असं अल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करके नहीं बना सकते, क्योंकि 1 2 3 डिग्री तीनों के तीनों कट्ठे अपन प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उन्होंने अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। नैक्सट है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के बेसिक स्ट्रेंथ दे अकॉर्डिंगली आपां इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच करना है। तो ये फस्ट होएगा तुहाडा पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये वाला फस्ट विच आएगा। नैक्सट होएगा एनिलीन सैकेंड नंबर ते, फस्ट नंबर ते ए होएगा, सैकेंड ते होएगा एनिलीन और थर्ड ते होगा पैराटोलोडीन। व्हाट इज ए गैब्राइल फथैलेमाइड सिंथेसिस? व्हाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड? ये जिहड़ा मैथड है गैब्राइल फथैलेमाइड सिंथेसिस, ये प्रैपरेशन करते हैं ये नाल आपां 1 डिग्री अमाइन, सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ने जिहड़े ओहो ही प्रिपेयर किए जाते हैं ये नाल। ठीक है जी। वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड? एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मैथड बिकॉज जिहड़े एराइल हैलाइड्स ने उन्हां दे विच न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुंदा। जो असीं फथैलेमाइड रिएक्शन करवाने हैं पोटाशियम फथैलेमाइड दे नाल तां न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुंदा, इस करके एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनते, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनते हैं। नैक्सट है एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। SN1 दे विच मतलब कैमिकल कैनेटिक्स दे विच जिवें तुसीं रेट ऑफ रिएक्शन कीता सीगा किहदे ते डिपेंड करदा, इहदे ते एक ही प्रोडक्ट के उत्ते डिपेंड करता है, जिहड़ा SN2 आ 2 ते डिपेंड करता है, और SN1 दे विच एक ट्रांजिशन स्टेट बनूगी। इहनूं तुसीं चंगी तरह अपनी बुक तो याद करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जूगी हुण ते इंपॉर्टेंट है, इहदे विच डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट हुंदा है। इस तरह मैनूं उम्मीद है कि तुसीं 2 पेपर करोगे चंगी तरह ते काफ़ी तुहानूं क्वेश्चन याद हो जाणगे। बायोमैथली टेस्ट की तुहाडी काफ़ी प्रैपरेशन हो जाएगी। वीडियो चंगी लगी तो बेटा लाइक जरूर कर दियो, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना और शेयर भी कर दियो।